آج کا واقعہ ہے کہ نوجوان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنایا۔ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ پڑا اور ان کی صورت بدل گئی، جسے دیکھ کر تمام لوگ کلمہ پڑھتے۔ آج کا یہ انتہائی ایمان افروز واقعہ دیکھ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ملتان کے ایک شہر کا ہے۔ اس شہر میں ایک نیک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اس اللہ والے نوجوان کی عزت کرتے۔ اس نوجوان کی نیکی کے چرچے پورے شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکے تھے۔ ہر کوئی اسے دیکھنے آتا کیونکہ اس کے چہرے پر نور نظر آتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اس نوجوان کے گھر کے بالکل پاس ہی ایک غار تھی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور آج تک اس غار میں کوئی بھی نہیں گیا کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو اس غار سے خطرناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگ ڈر کے اس غار کے اندر نہیں جاتے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ اکثر اس نوجوان سے یہ پوچھتے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ بالکل غار کے پاس رہتے ہیں۔ ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اپنا گھر بدل لیں اور اس غار سے دور چلے جائیں۔ لیکن اللہ ہی جانتا تھا کہ اصل راز کیا ہے۔ تنہائی میں وہ نوجوان کہتا کہ یا اللہ، وہ راز تجھے اور مجھے پتا ہے۔ اے اللہ، وہ کسی اور کو معلوم نہ ہو ورنہ میری عزت ختم ہو جائے گی، لوگ مجھے غلط سمجھیں گے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا پردہ رکھنا۔ ایک دن وہ نوجوان چوری چھپے کھانے کا ایک بڑا سا تھال لے کر اس غار کی طرف جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس نوجوان کو کہنے لگا کہ آپ یہ بڑا سا تھال لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور سیدھا غار کی طرف آ گیا۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا، لیکن وہ آدمی وہاں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور بہت سارے اور لوگوں کو بلا لیا کہ یہ نوجوان عجیب ہے۔ اس خوفناک غار کے اندر چلا گیا ایک کھانے کا تھال لے کر۔ میں حیران ہوں کہ اتنی خطرناک غار کے اندر یہ کیا کرنے گیا ہے۔ میں نے آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اس نوجوان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آخر آپ کھانا کسے کھلانے کے لیے گئے تھے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ لوگوں کی باتوں سے نوجوان کے دل میں بہت برا اثر ہوا اور وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ آخرکار وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں غار کے اس پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ میں اندر تو نہیں گیا، بس اندر تھوڑا گیا پھر واپس باہر نکل آیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اندر جانے کی؟ لوگوں نے ان کی بات پر یقین کیا کیونکہ وہ بہت سچا نوجوان تھا، کیونکہ وہ بہت نیک تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ واپس گھر آ کر وہ نوجوان رونے لگا، یا اللہ، میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اس راز کو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح ایک دن وہ نوجوان گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر وہ لڑکی اس پر فدا ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت امیر تھی، اسے نوجوان سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ نوجوان کو بھی لڑکی اچھی لگی کیونکہ وہ لڑکی بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ نوجوان اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ لڑکی تو اس نوجوان کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ گھر آ کر وہ نوجوان بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر میں اسے نکاح کر لوں تو کیسا رہے گا، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی آ رہا تھا اگر میری بیوی کو اس راز کا پتہ چل گیا تو وہ ہرگز مجھ سے شادی نہیں کرے گی بلکہ میرا تماشا بن جائے گا۔ اور نوجوان کہنے لگا، نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ اگر یہ راز اس کو پتہ چل گیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہوں گا کہ میرے ہونے والی بیوی کو یہ سب معلوم ہو۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، مجھے اس لڑکی سے محبت ہے، میں شادی کرنے لگا ہوں لیکن تو ہی مجھے بچائے گا اور میری بیوی کو یہ راز معلوم نہیں ہوگا، یہ صرف میرے دل میں ہی دفن ہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ ادھر وہ خوبصورت لڑکی اس نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ وہ اس نوجوان سے بات کرے اور نکاح کی دعوت دے۔
क्योंकि निकाह करना तो कोई गुनाह नहीं है और वो उससे मोहब्बत करती है। इसी तरह अगले दिन वो अपनी नौकरानी को एक खत देती है और कहती है कि ये नौजवान को दे आओ। उसकी नौकरानी खत लेकर नौजवान के पास गई। उस खत पे लिखा था कि मोहतरम, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कोई एतराज नहीं होगा। वो नौजवान जिसे सुनकर खुश हुआ क्योंकि उसे भी उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और वो यही अल्लाह से दुआ कर रहा था। उस लड़की की नौकरानी को कहता है कि मुझे कबूल है, मैं उस लड़की से निकाह करूँगा। इसी तरह कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो गई। वहाँ इलाके के सारे लोग बहुत खुश थे और वो उस लड़की की खुशकिस्मती पर हैरान थे। कितने अच्छे परहेजगार नौजवान के साथ उसका निकाह हो रहा है। इस तरह एक दिन उनका निकाह हो गया और वो खूबसूरत लड़की दुल्हन बन के उस नौजवान के घर आ जाती है। नौजवान भी उससे काफी मोहब्बत करता है। लड़की कहती है, मैं खुशकिस्मत हूँ जिसकी शादी आपसे हुई है। आप बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान हैं। जब रात के 12 बजे तो नौजवान फौरन उठकर खड़ा हुआ। उसकी बीवी सो रही थी। बीवी से छुपकर उसने खाने का बड़ा सा थाल उठाया। उसने सोचा कि मेरी बीवी को पता न चल जाए और वो खाना लेकर उस गार की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसकी बीवी सारा मंजर देख लेती है। उसने पहले भी सुना था कि ये नौजवान उस गार में काफी वक्त गुजारता है। अब उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि आखिर ये खाना लेकर कहाँ जा रहा है और आधी रात को उसे शक हुआ। जब नौजवान उस गार से बाहर आया तो वो कहने लगी कि आखिर आप क्या करने इस गार में गए थे, आप मुझे बताएं। पहले तो मैं लोगों की बातों का यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे बताएं कि आप उस गार में क्या करने गए थे। नौजवान अब बहुत परेशान हो गया कि आखिर मेरी बीवी को भी पता चल चुका है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया हूँ। अगर मैं लोगों को ये राज बताऊं कि शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। लोग भी अब तरह तरह की बातें बना रहे थे कि पता नहीं इस गार में इस नौजवान को क्या खजाना मिला है कि हर वक्त उस गार में रहता है। हमें तो इस गार के आसपास जाने से भी डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई जानवर है जो गार के अंदर रहता है। हमें तो यही लगता है कि इस जानवर से इस नौजवान की दोस्ती हो गई है। लोग मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। ये सारा मंजर उस नेक नौजवान की बीवी अपनी आंखों से देख रही थी। वो दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, आखिर उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि गार में क्या करने जाता है। घर आकर वो अपने शोहर को कहती है, मुझे बताओ, मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज तक भी तूने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये झूठ मुझसे क्यों बोला। नौजवान को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बात इतनी ही नहीं है जितनी ये बढ़ा रही है। तो कहने लगा, तुम खामोश हो जाओ और आइंदा कभी इस बारे में मुझसे बात मत करना और ना मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनूं। लेकिन उसकी बीवी नाराज हो गई और कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे अब झूठ बोलने लगे हो और मुझसे बातें छुपा रहे हो और न जाने तुम क्या क्या करते रहते हो। उस गार में कौन रहता है। वो लड़की आखिर अपने घर चले गई। उसके जाने के बाद वो नौजवान सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में तो अजाब आ गया है। मुसीबतों ने मेरा घर देख लिया है और हर कोई जहाँ मेरी इज्जत करते थे वहाँ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ। मैंने तो हमेशा तेरी नाफरमानी नहीं की, तुझसे ही दुआ की है, लेकिन ये क्या, ये तो सब उल्टा हो रहा है। मैं जितना डरता था कि लोगों को मालूम ना हो, उतना ही लोगों को मालूम हो रहा है। आखिरकार नौजवान अपनी बीवी के घर गया और उसे कहता है कि तू रो मत और मुझसे नाराज ना हो। मैं वादा करता हूँ कि जो बात है तुझे साफ साफ बताऊंगा। एक दिन जरूर तुझे इस बात का पता चल जाएगा। तू फिक्र ना कर और मुझे गलत ना समझ। उसकी बीवी रहमदिल थी और वो मान गई और कहने लगी, मुझे उससे और ज्यादा क्या चाहिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं बस इसलिए नाराज थी कि आपने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, तो आप ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन लोग उससे यही पूछ रहे थे कि आखिर हमें बताओ तो
क्या करने जाता है, क्यों खाना लेकर जाता है उस गार में तो इतनी खौफनाक आवाजें आती हैं। वो नौजवान कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आज तुम लोगों को बता ही देता हूँ, बल्कि खुद चलकर अपनी आंखों से देख लो। वो अपनी बीवी को भी यही कहता है कि तू चाहती थी ना मैं ये राज तुझे बताऊं, चल आज मैं तुझे अपनी आंखों से साफ दिखाऊंगा कि मैं क्या करने जाता हूँ, आखिरकार उधर क्या है। सारे लोग उस नौजवान के पास आ गए ये देखने के लिए कि आखिर उस गार में क्या है और वो नौजवान क्या करता था। उसकी बीवी भी उनके हिमरा थी। नौजवान अब बेफिक्र हो चुका था। वो कहने लगा, बहुत अरसे से मैं ये राज छुपा रहा था। जैसे ही वो सारे लोग गार के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ तो बंदर बैठे थे, एक बंदरिया थी और एक बंदर। वो दोनों उस नौजवान को देखकर खुश हुए, जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहे थे। लोग कहने लगे कि ये क्या है, ये बंदर कहाँ से आ गए और तुझे देखकर ये इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं। नौजवान कहने लगा, यही वो बंदर हैं जिनके लिए मैं खाना लेकर आता था। लोग कहने लगे, आखिर क्यों तू उनके लिए खाना लेकर आता था। नौजवान कहने लगा, ये बंदर नहीं, ये मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने ऐसा गुनाह किया कि अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए और उनकी सूरत बदल गई। जब उनकी सूरत बंदर में बदल गई, मैं नहीं चाहता था कि ये बात किसी को मालूम हो, लेकिन तुम लोगों ने इतना मजबूर किया कि आज मुझे बताना पड़ रहा है। ये मेरे माँ बाप हैं और मैं उनकी खिदमत करता हूँ, उनके लिए खाना लेकर आता हूँ, पानी देता हूँ, इसलिए उनकी सूरत तो बदल गई, लेकिन ये मेरे माँ बाप हैं, उनको मैं छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तब ही मैं गार में आता हूँ जब उन्हें भूख लगती है। लेकिन आप लोग गलत समझ रहे थे। वहाँ खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ये सच था। वहाँ सारे लोग रोने लगे और डर गए। उनके सामने एक इबरतनाक वाकया था और सारे लोग वाकया सुनकर रो पड़े और सजदे में गिर गए और अपने गुनाहों की तौबा करने लगे। या अल्लाह, उनसे आज तक जो गुनाह हुए हमें माफ कर दे, हमारे ऊपर अजाब नाज़िल न करना। जी दोस्तों, हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और आज हम लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल नहीं होता। पहले की जो उम्मतें थी वो गुनाह भी करती तो फौरन उनकी शक्ल बदल जाती, उन पर अल्लाह का अजाब आ जाता। आज हम लोग झूठ बोल रहे हैं और भी बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ल नहीं बदलती। ये इसलिए कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और उन पर कोई अजाब नहीं आता। लेकिन उस रहमत के बावजूद हमसे गुनाह हो रहे हैं और हम नाफरमानियां कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगे। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।